about who is the Chief Minister of Jharkhand. Shri Hemant Soren. Okay, very good. Now tell me who is the Prime Minister of India. Narendra Ramadas Modi. Very good, Niyati. I think you have learned all now. National Bird of India. Peacock. Very good. I am so proud of you. You are my student. Thank you, ma'am. Thank you so much for learning everything. So, everything is good now? Sure? Okay, that's it. You want something? No? Are you enjoying the dance? Are you enjoying my study? Have you completed the homework what I have given to you? Have you completed the grammar homework? Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. Are you understanding everything what I am saying to you? Yes, ma'am. Very good. So I am writing your name in annual function competition. Yes, ma'am. Okay? Will you make sure you will bring prize to me? Yes, ma'am. Sure na? Now take it. Thank you, ma'am. Thank you so much, Niyati, for learning everything. Okay? You like your school now? Very good. Thank you so much. Thank you. Now you can go. फ्लावर्स नेम में हमारे बच्चे पहचानेंगे कैसे कि हमारा कौन सा फ्लावर। हम लोग रोज बोलते हैं गुलाब, जनरली गुलाब के नाम से तो बच्चे पहचान जाते हैं कि हमारे घर में है, लेकिन अगर हम लोग रोज बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये हमारा रूरल एरिया का स्कूल है, तो हम लोग रोज बोलते भी हैं और रोज का पिक्चर दिखाते भी हैं। हम लोग ऐसा हमारे स्कूल में सारी सुविधाएं हैं जिसे हम लोग दिखा कर बच्चों को, समझा कर बच्चों को वीडियो के थ्रू भी और पिक्चर के थ्रू भी समझाते हैं। अगर सनफ्लावर है तो फिर हम लोग सनफ्लावर का फोटो भी दिखाते हैं, रोज़ है तो रोज़ का फोटो दिखाते हैं। इसी तरीके से हम लोग नेशनल फ्लावर में बताते हैं। बच्चे हमारे नेशनल फ्लावर के बारे में जानते तो हैं, बट ये नहीं पता है कि नेशनल फ्लावर दिखता कैसा। फिर हम लोग दिखाते हैं कि ये लोटस है और लोटस का ये पिक्चर है, आप लोग कहीं भी देखना तो पहचान जाना। फिर बच्चे हमारे पहचानते हैं इसे। Good. You like the subjects? You like how am I teaching? You understand everything? Yes or no? Say yes or no. You understand my subject? My voice? My way of talking? You understand my proper improvement of vocabulary? Okay. So you want to study more? You want to become something more? Okay. And say, what do you do in your home? Do you study or not? Are you sure? Should I ask your parents? Okay. I'll ask your parents now. Now tell me, do you want to participate in annual function? In what? Drawing, dancing? Drawing? All. You want to participate in all? Okay. I'll make sure you participate in quiz competition. Say okay? Okay. GK. You know na? Then who is the President of India? Wrong. President I am asking. President. Drop the murmur. Okay. National anthem? National song? National fruit? Mango. Mango. Are you sure? Okay. Union territories? 8. Total states? 28. Okay, very good. Smallest state in India? Largest state in India? Very good. So now tell me about who is the Chief Minister of Jharkhand. Shri Hemant Soren. Okay, very good. Now tell me who is the Prime Minister of India. Narendra Ramadas Modi. Very good, Niyati. I think you have learned all now. National Bird of India? Peacock. Very good. I am so proud of you. You are my student. Thank you, ma'am. Thank you so much for learning everything. So, everything is good now? Sure? Okay, that's it. You want something? No? Are you enjoying the dance? Are you enjoying my study? Have you completed the homework what I have given to you? Have you completed the grammar homework? Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. Are you understanding everything what I am saying to you? Yes, ma'am. Very good. So I am writing your name in annual function competition. Yes, ma'am. Okay? Will you make sure you will bring prize to me? Yes, ma'am. Sure na? Now take it. Thank you, ma'am. Thank you so much, Niyati, for learning everything. Okay? You like your school now? Very good. Thank you so much.
थैंक यू, नाउ यू कैन गो। सर मेरा नाम ऋतु कुमारी होगा। कोरल पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। यस सर। बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? कोरल पब्लिक स्कूल के बारे में कुछ बताइए। सर अगर देखा जाए तो स्कूल में सारा फैसिलिटी है, आपको एआई स्मार्ट बोर्ड मिलता है, एवरीथिंग आपको मिलता है, टीचर को भी इवन फुल फैसिलिटी मिलता है। जहाँ तक आप बच्चों की हैंडल करने की बात बोल रहे थे सर, बच्चों को हैंडल करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, आपको काम रहना होगा। जो भी है, एक चीज़ और, बच्चों को हैंडल करने के पहले आपको खुद को हैंडल करना होगा। एंड उनको हैंडल करना उतना टफ नहीं है, बट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर जाना होगा। सो सर इट्स ईजी टू हैंडल अ चाइल्ड। क्या क्या फैसिलिटीज़ है? सर स्कूल में काफ़ी फैसिलिटीज है, जैसे आपको एआई स्मार्ट बोर्ड मिल रहा है, मतलब बच्चों को बुक्स वगैरह, टीचर से जो भी उनको हो रहा है वो सब कुछ आप समझा सकते हैं, आप पीपीटी ला के दिखा सकते हैं। बच्चों को वेरियस प्रोजेक्ट करवाते हैं हम लोग, ऑडियो विजुअल के थ्रू पढ़ाते हैं हम लोग। जहाँ तक कोशिश होता है हम लोग खुद से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं ताकि बच्चों से ज़्यादा कुछ सीख सकें सर। दूसरे स्कूल के कंपेरिजन में आपके स्कूल में क्या अलग है? सर आई थिंक काफ़ी कुछ अलग है सर। जितना फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रहा है, आई डोंट थिंक सो इवन दूसरे स्कूल में फैसिलिटी अभी मिल रही है आपको इतने कम टाइम में। हर कुछ मिल रहा है आपको, बच्चों को फिजिकली जो ग्रोथ दे रहा है, और यहाँ पे जो एआई स्मार्ट बोर्ड है उससे आई थिंक बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता बाकी स्कूल में इतना ज़्यादा अभी फैसिलिटी फंक्शंस मिल रहे होंगे। क्या कुछ कहेंगे मैम आप कोरल पब्लिक स्कूल के बारे में? सर मैं यही बोलना चाहूँगी हमारे स्कूल के बारे में कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग अच्छे संस्कार भी देते हैं, और यहाँ पे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को हम लोग नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी है सर, जैसे कि एआई स्मार्ट बोर्ड हो गया। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे टीवी है, जिसके द्वारा हम बच्चों को राइम्स वगैरह या फिर कुछ भी ABCD पढ़ाना हो तो फिर हम लोग टीवी के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चे देखकर बहुत जल्दी सीख लेते हैं सर, और समझ भी जाते हैं। मैम अब दो शब्द। सर हमारे स्कूल में हर फैसिलिटी है, जैसे वैन की फैसिलिटी है, जो बच्चे थोड़ा सा 400 मीटर 500 मीटर दूरी से हैं या फिर और भी ज़्यादा दूरी से, वो लोग भी आ पाते हैं हमारे स्कूल में। जब हम लोग के स्कूल के बारे में जानते हैं कि एआई बोर्ड, जो हमारा स्कूल लगभग 1 साल ही हुआ है शुरू होते हुए, तो छोटे स्कूलों में बहुत कम ही ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह है जो हमारे स्कूल में अवेलेबल है। ये देख के भी सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और आना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में हम लोग हर तरह का शिक्षा दें, जिससे बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी सीखते हैं। झूला देखकर बहुत बच्चे आते हैं हमारे। ओरल जो हम लोग कन्वर्सेशन कराते हैं वो देखकर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अंदर में थार भी रखा है। हाँ हम सर वो बच्चे के गाड़ी देख के, बच्चे का खिलौना देख के भी सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ इतना छोटा स्कूल हो के भी मतलब हर चीज़ का सुविधा है, जिससे बच्चे चाहते हैं कि हम इसी स्कूल में आए। बहुत सारे बच्चे तो 1-2 स्कूल अगल बगल के स्कूल से अपने स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल से एडमिशन अभी जस्ट कराए हैं। कुछ पेरेंट्स अभी बता रहे थे कि हम 2-4 महीना पहले कराएं, कुछ पेरेंट्स बता रहे थे हम 5 दिन पहले कराए हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा क्यों एडमिशन कराएं, तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को यहाँ पे खिलौना मिल रहा है, झूला मिल रहा है, बोर्ड पे भी हम लोग वीडियो, मेरे बच्चे वीडियो देख के गए हैं। हमारे बच्चे पोएम सीखते हैं, वो टीवी के थ्रू सीखे हैं। ये सब देख के और भी हमारे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में सारी सुविधाएं हैं। मैम आप लोग यहाँ इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चे कैसे समझ लेते हैं? सर बिकॉज हमें उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं। हमारा वोकेबुलरी, स्पोकन इंग्लिश, ये हमारा मेन फंक्शन है सर। बच्चे कभी भी आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद ही उनसे अगर टॉकिंग करेंगे इंग्लिश में, आई थिंक वो बेटरली वो भी सीखेंगे। सो हम अब हमारा आप एवरीडे देखिएगा, एवरी मॉर्निंग वी स्टार्ट टू कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। सारे बच्चे से हम इंग्लिश से कोशिश करते हैं बात करने का, क्योंकि सर आई थिंक इंग्लिश इज़ अ मेन पॉइंट इन एवरी वन लाइफ। सबकी लाइफ में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक सर इसीलिए बच्चे, क्योंकि हम लोग बात करते हैं वो भी देख के वो चीज़ सीखते हैं, तो आई थिंक दैट्स वाई। कितने दिन में बच्चे समझ जाएंगे इंग्लिश सर? अब बोलने कितने दिन में लगेगा? आई थिंक सर 1 to 2 वीक, इफ़ वी ट्राई अवर बेस्ट। 1 या 2 हफ्ते लगेंगे उन्हें मतलब बेसिक सीखने में। तो ये हमारा कोशिश रहता है, और वो सीख जाते हैं 1-2 हफ्ते में काफ़ी कुछ। हम कितने दिन में बोल लेंगे सर? आई थिंक 1 वीक मे बी, थोड़ा एक बहुत। सप्ताह में इंग्लिश बोलवा दीजिएगा। ऑफ कोर्स सर, इफ वी टॉक टू डेली, व्हाई नॉट सर? मतलब 1 सप्ताह में आप यहाँ इंग्लिश सीख सकते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। अगर आप उनसे डेली बात करेंगे बेसिक, आई थिंक वो अपना नेम बोलना तो बिल्कुल सीख जाएंगे। एटलीस्ट फॉर देम माय नेम इज व्हाटएवर। सीखे भी है हमारे बहुत सारे बच्चे। अभी मेरा आया हुआ ओनली 5 डेज हुआ है सर। 5 डेज में हमारे बच्चे माई सेल्फ तो ओरली बिल्कुल इतना अच्छे से बोल रहे हैं कि आप कहीं भी सुन सकते हैं उनको। बच्चे को अगर हमारे बच्चे खड़े करके, आपने अभी बहुत सारे बच्चों से पूछा है, हमारे बहुत सारे बच्चे बोले भी। ओनली 5 डेज़ का मेहनत है वो, ओनली 5 डेज़ का मेहनत है। मैम ने समथिंग 10 डेज़, मैम ने समथिंग 10 डेज़ मेहनत किया है। आई थिंक हम बोल सकते हैं मैम 3 महीने में हार्डली इंग्लिश बोल सकता है आदमी। बिल्कुल सर। पूरा 3 महीना फ्लुएंट हो जाएंगे। फ्लुएंट हो जाएगा ना? फ्लुएंट हो जाएंगे 3 महीने में हमारे बच्चे।
बच्चे घर में मोबाइल से खेलते हैं, उससे बढ़िया है कि स्कूल भेज दीजिए। बिल्कुल सर, हम जो यहाँ पे उनके साथ सर, मोबाइल इज़ नॉट ओनली ऑप्शन, सिर्फ फ़ोन ही ऑप्शन नहीं है। अगर आप उनसे खुद फिजिकली टॉक करोगे वो ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप नहीं टॉक करोगे, आई डोंट थिंक सो सिर्फ फ़ोन से कोई कुछ से सीख सकता है। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं उनसे इंग्लिश में बात करें, एंड जो हम बोलते हैं वो भी वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे साथ आके बोलना सीखते हैं। दैट्स वाई हम लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रेशर देते हैं बच्चे पे, सीख जाए वो अच्छे से। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम बच्चों को ये सब बहुत सारा चीज़ यहाँ किड्स दिखाई दे रहा है, कैसे कैसे सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ बताइए। सर हम लोग जैसे कलर्स नेम सिखाते तो बच्चे हमारे पहचान नहीं पाते कि कौन सा कलर कौन सा तरह का दिखता है, हम लोग नहीं पहचानते। अगर हम लोग सिर्फ बोलेंगे ब्लैक है तो बच्चे तो हमारे पता नहीं है हमारे बच्चे को कि ब्लैक कौन सा है। इसलिए हम लोग कलर के साथ साथ नेम भी, कलर बोर्ड टाइप का एक छोटा सा हमारे पास सैंपल है जिसको हम लोग दिखाते हैं कि देखो ये ब्लैक लिखा हुआ और ये हमारा ब्लैक कलर है। वैसे ही सारे कलर्स का हम लोग नेम दिखाते हैं और कलर्स के बारे में भी बताते हैं कि ये रेड है और ये ब्लैक है। दोनों में डिफरेंस बच्चे देख पाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। ऐसे ही हमारा फ्लावर्स नेम है सर, तो फ्लावर्स नेम में हमारे बच्चे पहचानेंगे कैसे कि हमारा कौन सा फ्लावर। हम लोग रोज़ बोलते हैं गुलाब, जनरली गुलाब के नाम से तो बच्चे पहचान जाते हैं कि हमारे घर में है। लेकिन अगर हम लोग रोज़ बोलते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये हमारा रूरल एरिया का स्कूल है। तो हम लोग रोज़ बोलते भी हैं और रोज़ का पिक्चर दिखाते भी हैं। हम लोग ऐसा हमारे स्कूल में सारी सुविधाएं हैं जिसे हम लोग दिखा कर बच्चों को, समझा कर बच्चों को वीडियो के थ्रू भी और पिक्चर के थ्रू भी समझाते हैं। अगर सनफ्लावर है तो फिर हम लोग सनफ्लावर का फ़ोटो भी दिखाते हैं, रोज़ है तो रोज़ का फ़ोटो दिखाते हैं। इसी तरीके से हम लोग नेशनल फ्लावर भी बताते हैं। बच्चे हमारे नेशनल फ्लावर के बारे में जानते तो हैं बट ये नहीं पता है कि नेशनल फ्लावर दिखता कैसा। फिर हम लोग दिखाते हैं कि ये लोटस है और लोटस का ये पिक्चर है, आप लोग कहीं भी देखना तो पहचान जाना। फिर बच्चे हमारे पहचानते हैं इसे। ये सब क्या है मैम, ये सब ये सब छोटे बच्चों के लिए है जिसको हम लोग इसको हर तरह से इसका बिल्डिंग बॉक्स तैयार कर सकते हैं। इससे ABCD कुछ भी सीढ़ी हर तरह का इसमें नंबर भी आता है, जिसमें हम लोग नंबर 1 2 ऐसे बना के दिखाते हैं ताकि एक के ऊपर एक 1 2 सब लिखा हुआ रहता है। तो जिसे हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि हाँ ये 1 है, 1 के बाद कौन सा नंबर होगा वो आप ऐड करो। 0 है, 0 के बाद फिर हम लोग इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 के बाद फिर हम लोग 2 ऐड करेंगे। कौन सा नंबर किसके बाद है इससे हमारे बच्चे सीख पाते हैं कि हाँ जनरली ये नंबर इसके बाद है। जैसे 4 है सर, 4 के बाद हम लोग 5 ऐड करेंगे। अगर हमारे बच्चे को डायरेक्ट 1 के बाद 4 ऐड करने बोलेंगे तो बच्चे हमारे कैसे सीखेंगे। इसलिए हम लोग सारे नंबर्स का टूल रखे हुए हैं यहाँ पे, जिससे बच्चे खेल भी पाते हैं और सीख भी पाते हैं। 0 के बाद 1, 4 के बाद 5 ऐसे उसी अकॉर्डिंग लगाते हैं, जिससे बच्चे नंबर भी सीख जाते हैं और उनका गेम भी हो जाता है इसमें। अब नीचे भी बहुत सारा चीज़ है, ABCD क्या क्या नीचे है मैम, किड्स वगैरह देखिए। इधर से आओ ना, आएगा धीरे धीरे आएगा। सर ये अल्फ़ाबेट डिजिट है A B C। हमारे बच्चे क्या है ना, बहुत बच्चे ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे लिख पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अंदर से कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा है कि कोई देख नहीं पाते हैं, कोई टच करके समझ पाते हैं, कोई लिखने में जिनको हाथ में लेफ्ट हैंड से लिखते तो जल्दी सीखते नहीं। लेकिन अगर हम लोग हाथ के थ्रू अगर इसको बच्चे को बताते हैं, ऐसे हम लोग ओरली बोल के बताते हैं, क्योंकि अभी वो पेंसिल पकड़ने वाले बच्चे नहीं, हमारे प्ले ग्रुप के बच्चे हैं। तो A से B ऐसे हम लोग दिखाते भी हैं और सिखाते भी हैं, जिससे हमारे बच्चे, कोई बच्चे हैं कि ऐसे देख के बार बार टच करके भी कुछ बच्चे महसूस करके समझते हैं। कुछ बच्चे हैं कि हमारे देखकर सेम अपने पेंसिल से रख के ड्राइंग भी करने लगते हैं कि ऐसा है ये पिक्चर बना हुआ, हम ऐसा ही करेंगे। ये A है, ये B है, C है, D ऐसे हम लोग समझाते हैं बच्चों को। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल भी हमारे पास सारे फ्रूट्स के भी पिक्चर, फ्लावर्स के भी पिक्चर, सारा चीज़ें बच्चे उसी से हमारे समझते हैं। और ये जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं सर, ये हम लोग खिलौने के थ्रू इसमें बैटरी लगा के फिर हम लोग इसको समझाते हैं। बच्चे जब ये बोलता है या फिर कोई सॉन्ग गाता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं हमारे। ये बोलता है, अच्छा इधर लगा हुआ है, सब सिस्टम लगा हुआ है। मैम ये क्या है मैम, ये प्ले ग्रुप की स्लाइडिंग है सर। अगर जैसे बच्चे उधर खेलने के टाइम में जाते हैं, लेकिन अभी हमारे बच्चे क्या है, क्लास में बैठना नहीं चाहते हैं। अब क्लास में प्ले ग्रुप का स्लाइडिंग है बोल के बच्चे यहाँ से चढ़ के यहाँ पे फिसलते हैं, ताकि हम यहीं पे रहें, इसी खिलौने के पास रहेंगे तो वो रहेंगे क्लास में। क्लास में बच्चों को रखने के लिए हम लोगों को ये एक्स्ट्रा ये करना पड़ा है स्लाइडिंग का, ताकि बच्चे गेम्स के बहाने, झूला के बहाने क्लास के अंदर रहेंगे। अच्छा इसमें क्या है सर ये फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वाला। अच्छा बच्चों को हर प्रकार से बच्चों को हम लोग, ये बच्चों का हमारा टेबल चेयर है। जब हमारे बच्चे लंच होता है सर, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे इस पे बैठ कर अपने घर से पूरा
पूरा जो भी खाना लाते हैं लंच बॉक्स में वो यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से शेयर करके उसके बाद खाते हैं। ये क्या इसमें क्या है मैम? खेलने सर ये प्ले ग्रुप के बच्चे जो हमारे बिल्कुल छोटे बच्चे जो मतलब 2.5 years के जो बच्चे एडमिशन होता है उसके बाद वो बच्चे क्या है ना भागने के लिए करते हैं, तो हम लोग इसमें बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं और बॉल से खेलने के लिए छोड़ते हैं ताकि बच्चे इधर से बाहर ना आए, गिरे नहीं, जो भी खेलना है इसके अंदर ही खेले। अच्छा, ये सब खिलौना और ये तरह तरह का खिलौना है सर, जिसको जिसमें मन करता है उस पर बैठ के खेलते हैं ताकि क्लास में कुछ सीखे भी। ओरली हम लोग कराते हैं अल्फ़ाबेट डिजिट, कोई गेम्स, कोई भी फ्लावर्स, फ्रूट्स, एनिमल्स सब से कराते हैं। इस पे बैठे बैठे भी बच्चे कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं जिससे सीखते हैं। बच्चे रोते नहीं है? ये इतना सारा खिलौना देख के रोते हैं? देख के रोते ही नहीं है सर, बच्चे इसी में रहना चाहते हैं, इसी क्लास में रहना चाहते हैं ताकि हम लोग उन लोगों को लगता है कि अगर हम लोग इस क्लास में रहेंगे तो हम लोगों को खिलौना मिलेगा, इसलिए बच्चे इसी क्लास में आना चाहते हैं, दूसरी क्लास में आना नहीं चाहते। इस गाड़ी पे अगर बच्चे बैठ जाते हैं तो इस गाड़ी से उतरना नहीं चाहते हैं बच्चे क्योंकि इस गाड़ी में उन लोगों को अपने अकॉर्डिंग वो लोग सोचते हैं हम चला रहे हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग रिमोट से ये गाड़ी चलती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। ये रिमोट से चलता है जी। क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रियंका कुमारी। अच्छा, ये कलर है ना मैम? ये कलर, ये कलर्स ही हैं सर, शेप्स में भी आते हैं ये अच्छा। और कलर्स में भी आते हैं। उछलने वाला सर ये छोटे बच्चों को उछलने वाले जैसे बैठाते हैं हम लोग, उसके बाद बच्चे क्या है कि कुछ छोटे बच्चे जो बिल्कुल आते हैं गोद में वो रोते हैं, फिर हम लोग इस पे बैठा देते हैं, कुछ बॉल्स रख देते हैं इस पे ताकि बच्चे बैठना भी सीखेंगे और खेलेंगे भी। दीवार में पेंटिंग आप लोग किए हैं, क्या क्या वजह से? सर ये संडे मंडे ओरली हमारे बच्चे किस दिन स्कूल आते हैं, किस दिन छुट्टी होता है, वो तो हम लोग ओरली बताते हैं बच्चों को कि वीक नेम है ये संडे है, संडे के दिन हम लोग का हॉलीडे है, हम लोग नहीं आना है संडे को, हम लोग का छुट्टी है स्कूल। फिर बच्चे खुश हो जाते हैं संडे को छुट्टी है, फिर हम लोग बताते हैं मंडे को हम लोग का वर्किंग डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके हम लोग को बच्चों को वीक नेम भी सिखा देते हैं ओरली। ये हमारा ट्रैफिक लाइट का सिग्नल बताया गया है सर यहाँ पे कि हम लोग बच्चों को बताते हैं ओरली कि आप कैसे रोड में चलना है, आप लोगों को कैसे करना है। अगर रेड लाइट हो जाएगा तो हम लोग को स्टॉप हो जाना है, येलो लाइट हो जाएगा तो वेट करना है, ग्रीन लाइट हो जाएगा तो गो चलना है हम लोगों को रोड में, वरना फिर हम लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में नहीं पता होगा तो फिर हम लोग नहीं चल पाएंगे। इसलिए ट्रैफिक रूल एज अ पिक्चर, एज अ वर्ड हम लोग बच्चों को बताते हैं कि हाँ बच्चे हम लोग को क्या सीखना और क्या ज़रूरी है हम लोगों को लाइफ में। हम लोग रोड में तो एट ए टाइम हमेशा चलते हैं, तो ये तो ज़रूरी है हम लोगों को सीखना है, इसलिए हम लोग पिक्चर के थ्रू बच्चों को समझाएं। ठीक है मैम, धन्यवाद।